So, hi guys, welcome to Cricket Caviar and the start of the Rohit Sharma era. Rohit Sharma era has started, and Rohit Sharma is the man of the series, as in the first series Yay! as the full-time captain of India. So, and Dravid Yeah, and yeah. Rohit Kumar also has started with a bang. But I would not take too much from this series because obviously New Zealand played a World Cup final just 7 days back. ठीक है मतलब यार वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इमोशनली एंड फिजिकली दे वर टोटली ड्रेन्ड आउट एंड they are preparing actually they are preparing for the test series, so I would not take much from this series. But मेरे हिसाब से ये थर्ड T20 जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें एक तो केएल राहुल को बैठा दिया, तो वी सॉ व्हाट इम्पैक्ट कैन ईशान एंड रोहित हैव. एंड सेकंड थिंग इज हर्षल पटेल का जो बॉलिंग था लास्ट दो मैचेस में, and today we also got to see Venkatesh Iyer bowl beautifully. I mean, he bowled well. So these are my like positives. So over to you guys. What do you what did you see in this series that Yeah, it's good that last match में we even batted first and showed some courage with the toss impact. और उसके अलावा आई वुड हैव लव टू सी सम मोर चेंजेस. ऋतुराज गायकवाड को भी एक मैच देना चाहिए था. एंड but yeah, overall, and again, I'm happy India crushed New Zealand, but at the same time, Rohit is our big. We have a big dependency on Rohit. Like he's our white ball MVP. Like वर्ल्ड कप में भी उसके भरोसे हम लोग सेमीफाइनल्स तक गए थे 2019 में. एंड इस बार T20 वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो अच्छा नहीं खेल पाया, तो हम लोग बाहर हो गए. सो that is a big factor, and I hope our team will be ready. Like जैसे ऑस्ट्रेलिया वर 5 डाउन एंड दे स्टिल चेज दैट टारगेट, वो वेड और स्टोइनिस. अगर इंडिया 90 पे 5 हो जाए कभी, तो कैन दे चेज 170? नो, आई डोंट थिंक सो. Maybe we can. Who knows? But yeah, for me, this win is. I mean, ठीक है यार. मतलब मुझे भी इतनी खुशी नहीं हुई because we played really bad in the World Cup and New Zealand were not taking this seriously at all. I mean, उनके performance को देख के लग रहा था they are not playing it that seriously. Their fielding was not up to the mark. I mean, all of the players were not playing. But from and in Team India perspective, it was good to see some players. ठीक है, like it was good to see ऋतुराज, ये क्या बोलते हैं, Venkatesh Iyer. It was good to see Akshat Patel playing well. Even I was surprised why he was dropped in the first place. And it was good to see Harshal Patel. I think he can be a good death bowler for us. इसके अलावा तो ठीक है यार. I think we should have experimented more. We should have played Avesh Khan. We should have played everyone. हम लोग 2 मैच जीत चुके थे, तो इस मैच में सारे नए प्लेयर्स खिला लेते यार. मतलब थोड़ा और एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है मे बी. नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी टीम इज लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग टू मच. आई मीन अभी क्योंकि वर्ल्ड कप इज जस्ट लेस देन अ ईयर away, they want to matlab not make lot of changes. But yeah, I think we should have tried a lot of people, but this is a very conscious call that has been taken. क्योंकि रोहित शर्मा ने लास्ट मैच के प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि ऐसा नहीं कि हम सबको चेंज करेंगे, but I want to see Ashwin and Chahal play together actually. That did not happen. And one more thing that was missing was middle order scoring runs. Middle order missed out again. Like Pratik said कि अगर हम रोहित पे अभी भी हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है. आज तो भाई दीपक चहर ने मतलब मैजिक कर दिया. नहीं तो आज तो बचा लिया. 180 तो लग ही नहीं रहते कहीं से. या सीरियसली. तो दीपक चहर ने आज मैजिक कर दिया भाई. उसने लास्ट में आके जो 19 रन का ओवर लिया है, दैट इज द 20th ओवर. तो दैट रियली गेव अस अ डिफेंडेबल स्कोर इन अंडर दीज कंडीशंस. और ड्यू भी उतना ज्यादा नहीं आया, तो ठीक है मतलब बॉलिंग अच्छा हुआ. अक्षर पटेल बोल्ड वेल. अभी कुछ पॉइंट आ रहा है कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे वर सेइंग कि अक्षर पटेल कैन पिप रविंद्र जडेजा एज अ फ्रंट रनर for the World Cup. So what do you think about that, guys? Can Aksar pip Ravindra Jadeja for the World Cup spot? Not really, but he's actually picking more wickets than Jadeja does. I think his bowling is better than Jadeja. His bowling is better than Jadeja, but batting and fielding mein Jadeja will prevail over Aksar. That is the thing. Matlab. Yeah. Jadeja is more of someone who brings in a lot of balance in a T20 setting, but maybe we can play both. But I agree, Aksar is also very talented, and we have still yet to see his best with the bat in international cricket. Like he can also win matches with the bat.
and he's going to make long strides in test matches for sure. So अच्छा, एंड डू यू गाइस थिंक कि भुवी को खिलाने वाले नेक्स्ट वर्ल्ड कप के? अदरवाइज भाई उसको भुवी 3 मैच नहीं खिलाते। भाई भुवी इज ओवर यार, वी शुड लुक बियॉन्ड भुवी, मतलब कि भाई वो इतने मैचेस, मतलब अभी भी वो भाई गुप्टिल उसको मतलब गुप्टिल जस्ट पम्प्ड भुवी, एंड चहर वाज आल्सो नॉट वेरी गुड एज अ बॉलर। आई मीन ठीक है उसने बैटिंग कर दिया, बट ही नीड्स टू आल्सो बोल वेल अंडर दीज कंडीशंस। व्हेन हर्षल पटेल लुक्ड द लीग अपार्ट, मतलब उसने जैसा बॉलिंग किया, और आज Yeah. वेंकटेश He was अय्यर pretty ने काफी confident as well. हर्षल पटेल का ट्रांजिशन बहुत अच्छा है आईपीएल से इंटरनेशनल में, लाइक सीरियसली आई वाज अमेज्ड। या बहुत अच्छी बॉलिंग की सीरीज में। and he knows how to bowl with Dewey, with Dew में कैसे bowling करना है, क्या pace change करना है। It was very good to see Harshal. Like Middle Jimmy order Neesham में was a good finisher, but he was struggling big time against Harshal Patel today. Like वो Yeah, ओवर yeah. में जो he was like, yeah. पंत बस यार, एक पंत फर्स्ट का मैच ही क्या, थोड़ा क्लोज हुआ था, और उसमें भी आई वुड से वो वेंकी ने जो बाउंड्री मारी थी दैट वाज वेरी क्रूशियल। लाइक उसने सिर्फ 4 रन बनाए थे फर्स्ट मैच में, बट प्रेशर में आके नए रोल में खेल रहा है वेंकी। ही वाज ओपनिंग फॉर केकेआर, उसको सडनली लास्ट ओवर में लाइक 9 बॉल में 9 लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए थे राइट, एंड या उसको भेज देते हैं। So that was kind of a pressure situation, and he yeah, did that well was the actually. one close T20 match out of the 3, the closest one. And यार पंत का he is failing regularly, मतलब he is not मतलब नहीं हो पा रहा है पंत से। मतलब वो भी एक serious question है that team management has to look, मतलब उससे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है उससे। Yeah, it's so weird. Like 1-2 साल पहले we were thinking कि Pant is only good for white ball, but अभी ऐसा लग रहा है Pant is good for red ball cricket, and white ball में we have to look for other people. Like seriously, Pant का जो slow 2 starting साल का में जो टेक्निक है, it really hurts the team. Yeah, वो जो slow start करता है। नहीं, 2 साल में उसका स्ट्राइक रेट, आई डोंट थिंक ऐसा कोई इनिंग्स है जो उसने 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेला है। Yeah, तो exactly. ही जो स्ट्रगलिंग आईपीएल विद में हम ऋषभ पंत जो जानते थे 180 160 के डिजास्टर स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला, वो कभी दिखा ही नहीं 3 साल में। तो दैट इज अ हाँ, बिग प्रॉब्लम। याद है वो एसआरएच वाला मैच जिसमें दिल्ली एंड एसआरएच का मैच जिसमें उसने भुवी को इतना मारा था, एंड 128 उसने मारा था। सो या दैट पंत इज लॉन्ग सडनली मिसिंग, और हमको वो 30 ऑफ 30 या 25 ऑफ 20 वो वाला पंत अब देखने को मिल रहा है, which is not Yeah. ideal. तो Yeah, and we need even more today firepower in the lineup, सच में। Heard and यार Hardik ये Pandya is going to NCA to prove his fitness before the South Africa tour. So I'm really hoping Hardik, Shardul Thakur, and Deepak Chahar, these three will like work really hard on their game, to make sure, like we have like yeah, let's see who will be our choice in the next World Cup then out of these यार, three as a bowling all rounder or a batting all rounder. we don't need Hardik सबसे पहले। Do we need him anymore in the team? भाई वेंकी इज पता बेटर नहीं। देन ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड अच्छा था। बट यार बाकी दोनों मैचेस में भी वेंकी को बॉलिंग देना चाहिए था। मतलब ये टीम मैनेजमेंट ने कुछ ज्यादा ही वेंकी सीरीज को को बहुत रेट किया हुआ है, मतलब कि ये सीरीज जीतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। मुझे ये समझ नहीं नहीं आया कि ये सीरीज को जीतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों था इनके लिए, कि ये लोग उनको उसको बॉलिंग नहीं दे रहे थे, जबकि दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर था। वेंकी से 1-2 ओवर निकलवा सकते थे, 6th बॉलर यूज कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं Yeah, दिया। that strategy was really bad to like first 2 मैचेस में कि सिर्फ 5 ही बॉलर्स यूज करेंगे। Like ऐसा नहीं चलता बड़े टूर्नामेंट्स में, और they should have really used 6 bowlers or 7 bowlers. या सो So guys, श्रेयस अय्यर को यार फिनिशर क्यों खिला रहे थे, पता नहीं, मुझे श्रेयस अय्यर मेरे बहुत को क्या लगता है कि नंबर 3 या यार, नंबर हमारा 4 आना फिनिशर चाहिए थोड़ा। कौन है श्रेयस अय्यर फिर? जल्दी आना चाहिए। पता नहीं, श्रेयस अय्यर का जो एटलीस्ट आज दिल्ली तो में जो पोजीशन है वो अच्छा है उसका। लाइक आई थिंक ही इज 3 और 4, तो वैसे ही होना चाहिए। एटलीस्ट उसको नंबर 4 पे भेज सकते थे श्रेयस अय्यर को, लेकिन आज भी पंत को भेजा नंबर 4 पे। लाइक कुछ भी चल रहा है, हाँ बट ठीक Maybe है। they're giving more chances to Pant. Maybe they want Pant to play more. उसको चलो यार, और try कर रहे हैं। बहुत ज्यादा T20 हो गया यार, थोड़ा वाइट बॉल के बारे में बात हो जाए। यार, and yes, yeah, T20 is really important right now because we are playing another World Cup next year as well. इसके बाद अपना next T20 सीरीज किसके साथ होगा? अभी है, आई थिंक काफी सीरीज है। आई थिंक इंडिया हैज टू साउथ प्ले अफ्रीका के 11। साथ है क्या T20? साउथ अफ्रीका के साथ है T20s? हाँ हाँ,
I think Ghana 11 because- more T20 मैचेस हैं इंडिया के पास बिफोर इंडिया के सबसे ज्यादा इनफैक्ट 11 T20s हैं टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप सो I remember hope how we it were will be pleasantly enough. surprised जब इंडिया साउथ अफ्रीका में आई थिंक व्हाइट बॉल में उनको धोया था लास्ट टाइम चहल एंड कुलचा की जोड़ी आई थिंक वहीं से फेमस हुई थी जब लास्ट साउथ अफ्रीका टूर हुआ था तब साउथ हाँ अफ्रीका फिर टीम अब डिक्लाइन तो पे थी चहल और कुलचा दोनों ही कुलचा चले गए और वही अश्विन और जडेजा ही आ गए वो खत्म हो गया छोड़ भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जोड़ी वापस आ गई वो 2017 वाली हाँ और यार ऐसे फिर देखा तो वही लोग अभी खेल रहे हैं तो पता नहीं क्या यार ऑल द प्लानिंग यार मतलब पता है वर्ल्ड कप के 5-6 दिन पहले या मतलब 1 महीने पहले जो होता है दैट ओनली मैटर्स ये जितने भी मैचेस तुम खिला लो मतलब कि वही समवन वाज सेइंग कि 11 मैचेस हैं तो इट डजंट मीन कि अभी जो लाइनअप खेल रहे हैं वो खेलेगा लास्ट में कुछ भी हो सकता है भाई रोहित ने बोला था कोहली ने बोला था वो रोहित के साथ ओपन करेगा वो भी हुआ नहीं तो मतलब कि बहुत इरेलेवेंट हो जाता है ये सब बट ऑब्वियसली वी होप देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट जैसे वेंकटेश अय्यर को मिलना चाहिए चांस यार केएल राहुल पता नहीं मैनेजमेंट कब रियलाइज करेगा ही इज नॉट फिट यार आज मैं जैसे मैंने स्टेटस में डाला मतलब 69 फॉर 0 इतना अच्छा पावर प्ले दिया ईशान एंड रोहित ने क्योंकि रोहित को भी स्ट्राइक मिला इक्वली लास्ट मैच में इफ यू हैव सीन द लास्ट मैच केएल राहुल ने उसको स्ट्राइक ही नहीं दिया भाई वो अकेला ही खेल रहा था उसके पहले वाले मैच में रोहित अकेला खेल रहा था केएल कुछ नहीं कर रहा था तो मतलब यार वो उन लोग का सिमेट्रिकल नहीं लगता है थोड़ा मतलब अजीब लगता है मुझे नहीं आई एम ग्लैड यू बोथ आल्सो फील कि इंडिया ने कम एक्सपेरिमेंट किया इस सीरीज में बिकॉज कल मैं स्पोर्ट्स तक देख रहा था तो दे वर वेरी हैप्पी दे वर सेलिब्रेटिंग कि रोहित एंड केएल ने क्या बैटिंग करी एंड they were like yeah they were very happy with the fact कि they didn't even mention कि इतना conventional खेल रहे हैं अभी भी and they were saying कि what a player KL राहुल लास्ट 5 में से 4 50s हैं 5 मैच में से अरे नामीबिया और स्कॉटलैंड वाली 50s क्यों गिन रहे हो भाई क्या मतलब नहीं I think there are two people in India who have caught this point one is Akash Chopra and one is Murali Kartik ने भी लास्ट मैच में बोला था कि I am not very comfortable ये लोग जैसे खेल रहे हैं मतलब दे आर गिविंग प्रेशर टू देमसेल्व्स एंड आल्सो टू द मिडिल लास्ट मैच में भी 9 ओवर में 63 था एंड रोहित टुक द चांस इन द 10th ओवर वहां पे बोल्ट ने उसको ड्रॉप कर दिया था और पहले वाले में भी उन्होंने केएल ने काफी प्रेशर दे दिया रोहित हैड टू अटैक मतलब दिस इज नॉट द आइडियल वे आई थिंक दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस इन द वर्ल्ड कप आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस एक्चुअली बट पता नहीं ये लोग रियलाइज कब करेंगे यार ये लोग केएल के वो 65 आउट ऑफ 50 बॉल्स वाले नॉक से बहुत खुश हो जा रहे हैं तो ठीक है भाई दे डिजर्व दिस आई गेस आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर यार ईशान किशन का 29 आउट ऑफ 19 इज मोर वैल्यूएबल देन 65 आउट ऑफ 50 ऑफ केएल राहुल पावर प्ले में मोमेंटम अगर आज नहीं मिलता भाई तो हम नहीं पहुंच पाते 185 एंड यू नीड 185 व्हेन यू बैट फर्स्ट यू कांट हैव कि 160 150 T20 में you need 180 especially with the dew coming in yeah now I'm feeling maybe we don't have enough time to build a new team we don't have Let's time see. and I finally I think थोड़ा वही lag हुआ lineup है चलेगा but guys, can we talk now क्या sorry can we anyways आवाज नहीं आ रही anyways हाँ भाई तो we need to देखते हैं I mean we have a new coach as well let's see maybe these but they भाई don't want to experiment maybe they have a build plan करने का टाइम कैसे टीम नहीं है खिलाएंगे तो इस टीम के साथ तो नहीं जीत पाएंगे फिर से ये रोहित राहुल और कोहली अगर ट्रायो रहेंगे ना तो नहीं जीत पाएंगे और अगर इतना ही वैसा शमी भूवी बुमराह यही रहने वाला है बॉलिंग ऑर्डर भी तो फिर तो नहीं जीत पाएंगे अगला वर्ल्ड कप भी अभी से ही you can't have two anchors playing in your top 3 मतलब तुम्हारे टॉप 3 में Yeah, दो yeah. एंकर ही राहुल एंकर कर रहे हैं और कोहली भी एंकर कर रहा है तो भाई तुम कैसे जीत पाओगे यू नीड आउट एंड आउट एग्रेसिव प्लेयर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स जो सब टीम के पास है सारी टीम्स के पास है बस हमारी टीम में नहीं है और एक लेफ्ट हैंडर चाहिए टॉप ऑर्डर में दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एक्चुअली तो गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट मैंने जब नए अर्ली डेज से टेस्ट क्रिकेट देखने के तब न्यूजीलैंड इंडिया टूर पे आई थी एंड आई थिंक शायद फर्स्ट मैच था सीरीज का दे बोल्ड इंडिया आउट फॉर 80 ऑड एंड उसके बाद स्टीफन फ्लेमिंग इनसे आउट नहीं हो रहा था इन्होंने कुछ 250 रन बनाए एंड दे इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन दैट टेस्ट मैच इज दैट द लास्ट टेस्ट मैच दैट न्यूजीलैंड हैव वन इन इंडिया पता नहीं भाई that's हाँ way back by Stephen Fleming playing Do you remember that match? शिखर उसमें जहीर खान एकदम नया था उस टाइम पे उस सीरीज में हाँ आई थिंक 2001 या 2002 का बात कर रहे हैं
So that Yeah, was I remember there have been lot of drawn test, मतलब न्यूजीलैंड have been quite good at drawing test matches. एक बार मैकलम ने डबल 100 मार दिया था, वो भी ड्रॉ हो गया था. बैंगलोर में एक बार मुझे याद है जो क्रिस मार्टिन था, उसने 5 विकेट ले लिया था, सचिन पूरा टॉप ऑर्डर को ब्लो yeah. आउट कर दिया था, which was in 2014 or something या 2013 में. So मतलब न्यूजीलैंड आर अ गुड टेस्ट टीम एंड दे विल डेफिनेटली गिव. अभी विलियम सोमरविल काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने मतलब देखा कि वो Yeah. उनका जो टेस्ट स्पिनर है विलियम सोमरविल, वो भी खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली. तो अजाज Anyways, I पटेल started with that story to ask this question: कि do you think New Zealand can beat India in at least one Test match? I think last India को किसी ने Test match हराया था, that was England, surprisingly last year, this year actually, earlier this year. नहीं, डिपेंड करता है कि कितना टर्निंग ट्रैक होगा. अगर पूरा ही टर्निंग ट्रैक ये लोग बना देंगे, जैसे इंग्लैंड सीरीज में फर्स्ट मैच हारने के बाद जैसा बना दिया था, तो अहमदाबाद जैसे मैचेस होंगे. तो फिर न्यूजीलैंड डोंट हैव अ चांस बिकॉज़ अश्विन विल जस्ट स्टीम रोल द कीवी बैटिंग ऑर्डर. बट अगर थोड़ा भी बैलेंस्ड, पहला मैच आई थिंक कानपुर में, पहला मैच तो कानपुर में बहुत दिन से टेस्ट मैचेस नहीं हुए, पर वहां जनरली टर्निंग ट्रैक होता है. और मुंबई इज ऑल्सो अ टर्निंग ट्रैक इन टेस्ट मैचेस. अगर दोनों कानपुर से तो डेन स्टेन का परफॉर्मेंस याद आता है. इंडिया No, got that touched in was कानपुर. Ahmedabad. I think that was Ahmedabad. कानपुर में तो 3 दिन में हरा आई दिया था. थिंक दैट वाज अहमदाबाद. कानपुर में भी एक that was टेस्ट Ahmedabad. मैच हारे यार 2010 के अराउंड एक. नहीं, कानपुर में हम लोग ने उनको हरा दिया था. वो सीरीज 1-0 साउथ अफ्रीका लीड कर रहा था एंड कानपुर हम लोग गए थे, तो धोनी और लक्ष्मण ने सेंचुरी मार दिया था और फिर वो लोग को हरा दिया था हम लोग ने कानपुर में. बट कानपुर का सीरीज मुझे याद नहीं आ रहा इफ इट्स अ बैटिंग पिच, इफ इट्स अ बॉलिंग, कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया मैच में. हाँ, इट्स अ फर्स्ट डे बैटिंग पिच एंड देन इट्स अ टर्निंग ट्रैक. तो ऐसा ही टेम्पलेट फॉलो होगा. देखते हैं. केन विलियमसन हैज नॉट डन वेल इन इंडिया इन टेस्ट, तो दिस इज अ बिग सीरीज फॉर हिम एंड न्यूजीलैंड स्पिनर्स विल बी टेस्टेड. ईश सोधी तो रहेगा नहीं, तो it will be Santner or and maybe Ajaz Patel or someone. Ajaz Patel है वैसे स्क्वाड में. Where is the second one? Mumbai. Second one is in Mumbai. Second is in Mumbai. Yeah. And वो रॉस टेलर तो आ रहा होगा ना खेलने. हाँ, रॉस हाँ टेलर भाई, है. उसके बिना कैसे खेलेंगे ये लोग. तो यार I'm रॉस टेलर speaking a lot of विलियमसन Ross प्लेयर्स Taylor. है. I mean if they give their best then anything can happen. और वैसे भी एक मैच में तो अजिंक्य रहाणे इज लीडिंग राइट एंड विल डेफिनेटली मिस रोहित शर्मा स्पेशली इतने अच्छे फॉर्म में अभी. Rahane is leading in By both the way, it will be matches. interesting. Kohli will be back for the second one. भाई मयंक तो guys, अग्रवाल इस है, बार- तो इंडिया में खेल लेगा मयंक अग्रवाल. उसका तो इस बार ज्यादा- तो मयंक, केएल और गिल में से कौन दो ओपनर्स तुम खिलाओगे? लाइक व्हाट विल बी योर पिक? I think Mayank Gill and will Mayank. open. Mayank will open. I think Mayank will open along with KL Rahul and 3 down, 1 down. I'm actually obviously surprised Pujara. because if you guys remember, Gill was the first choice for World Test Championship. वो इंजरी की वजह से फिर मयंक हुआ था and then मयंक को भी इंजरी हो गई थी, तो फाइनली केएल आ गया था. I'm surprised you guys didn't say Gill will play, but हाँ, बट गिल ने ऐसा कोई ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत अच्छा खेला, फिर इंडिया में वो सीरीज इंडिया में में हाँ उसने अच्छा नहीं खेला. तो अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें देख के तो लग रहा है कि मयंक काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं विद पुजारा. मयंक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी इंडिया में, डबल हंड्रेड्स मारे उसने. हाँ, वो WTC का लीडिंग रन स्कोरर था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आफ्टर दैट ही गॉट ड्रॉप्ड सडनली लाइक. तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ही गॉट ड्रॉप्ड और बिफोर दैट इटसेल्फ ही गॉट ड्रॉप्ड आई थिंक. और जो हमारा मिडिल ऑर्डर रहाणे एंड पुजारा, दे वर इन सो मच क्वेश्चंस आफ्टर द इंग्लैंड टूर. व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल दे फेयर? इंडिया में तो अच्छा ही खेलते हैं वो लोग. वो इंडिया में खेल लेंगे भाई. एंड रहाणे इंडिया में ऑब्वियसली इंडिया में भी अच्छा नहीं खेलता वो तो, बट अभी वो नंबर 4 पे बैटिंग करेगा तो मे बी वो अच्छा खेल ले, क्योंकि वो नंबर 5 पे आई थिंक वो कोहली का जो बिग विकेट गिरता था उसके बाद वो आता था, तो वो प्रेशर में हमेशा प्रेशर में ही रहता था. बट नंबर 4 पे आई एक्सपेक्ट बेटर, जैसे उसने एमसीजी में किया था. ही बैटेड एट नंबर 4 तो ही प्लेड मच बेटर. या एंड आई थिंक पुजारा को भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बिकॉज वो स्लोली फॉर्म में वापस आ गया था इंग्लैंड के लास्ट 2 मैचेस में एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग मोर फ्रीली. तो इंडिया में डेफिनेटली पुजारा प्लेज मोर फ्रीली. तो आई थिंक पुजारा माइट बी आवर हाईएस्ट स्कोरर दिस सीरीज. दैट्स माय प्रेडिक्शन.
पुजारा कैन बी, I think it will be one of मुझे the लग रहा है openers. केएल होगा. हाँ मुझे केएल या मयंक लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा, बट देखते हैं हम क्या होता है. So तो two fast bowlers will be Bumrah and Shami then. I guess so. Yeah. Both of Bumrah, them are Shami, playing, and right? maybe Umesh Yadav. Maybe Umesh Yadav will play the one of the test because he's also been यार preparing. बुमराह And शमी दोनों ही नहीं है स्क्वाड में. हाँ Oh man, Bumrah, मैं Shami देखनी तो है थी. नहीं. Umesh Yadav, Ishan Sharma, and I think सिराज. Siraj. These three will play. ओ उमेश यादव तो का बड़ा रोल रहेगा मैन. इंडिया में अच्छा रिवर्स करता है उमेश. उमेश इंडियन पिचेस पे अच्छा है, और वो इंग्लैंड में भी उसने दिखा दिया कि ही इज अ गुड बॉलर इन इंग्लिश पिचेस आल्सो. उसने काफी अच्छा बॉलिंग किया. रूट का जो विकेट उसने क्रूशियल लिया था 4th टेस्ट में, तो ही इज अ गुड बॉलर. ही इज अ गुड बॉलर, नो डाउट. बाकी ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज गोइंग टू मिस कॉनवे. अगर कॉनवे भी होता तो बहुत स्ट्रांग टीम हो जाती न्यूजीलैंड की. कॉनवे, विलियमसन, टेलर एक अच्छा. बट वो निकल्स आएगा. निकल्स आई थिंक आएगा, राइट? हेनरी लेथम भी निकल्स, आएगा. लेथम. लेथम एंड Yeah, निकल्स Latham is दोनों really आएंगे. good. Latham is really good. ओ यार मैंने फॉरगॉट न्यूजीलैंड तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर है मैन. एक्चुअली उनकी बैटिंग काफी अच्छी है. नहीं, एंड एंड काइल बॉलिंग में भी जेमिसन. हाँ काइल साउदी एंड जेमिसन. जेमिसन एंड साउदी, दे आर रियली गुड बॉलर्स टेस्ट मैचेस में. Yeah. They'll miss Bolt though, but okay. या उनको वही एक फास्ट बॉलर को उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आई गेस ऑटोमेटिकली बोल्ट नहीं खेल रहे, तो सऊदी एंड जेमिसन विल प्ले एंड 2 स्पिनर्स दे हैव टू प्ले 2 स्पिनर्स. तो आई थिंक इट विल बी सैंटनर एंड मे बी टॉड एस्टल को खिला सकते हैं, या विलियम सॉमरविल. बट सॉमरविल भी आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिनर है. दोनों ही फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर वो लोग खिलाएंगे क्या? I don't know. I'm not sure. उनका सेकंड स्पिनर कौन होगा? I'm not sure. ग्रैंड होम आ गया क्या टीम में वापस? बिकॉज़ ग्रैंड होम अच्छा चेंजअप होगा उनके लिए नहीं, मीडियम Grandom पेस. नहीं आया टीम में. रैंडम इस कंडीशंस में क्या ही करेगा वो, मतलब ठीक है यार. फिर तो न्यूजीलैंड एक और पेसर खिलाएगी बिकॉज़ वो 2 स्पिनर ज्यादा तो नहीं खिलाएंगे आई एम श्योर. अरे बोलो वैगनर को खिलाएंगे यार. थर्ड पेसर भी खिलाएगा. दिला ओह वैगनर. वैगनर है हाउ कैन क्या? आई फॉरगेट? हाँ वैगनर तो खेलेगा ही यार. वैगनर इज लाइक अरे वैगनर ऑल कंडीशन डेफिनेटली. बॉलर्स. बट वैगनर इट से विल बी अच्छा इंटरेस्टिंग मैन. अगर वैगनर बाउंसर्स डाल पाए इंडियन पिचेस पे तो भाई मानना पड़ेगा. There's no Matt Henry in the team. मैट हेनरी नहीं है. ओके. Yeah, actually, now going through the New Zealand squad, I'm thinking, yeah, it will be very interesting to watch these matches because the New Zealand team बहुत fighting team है, तो and they know their record is so bad in India. I'm sure they definitely want to change things. I don't know. Maybe with Latham, It will be Williamson, only and interesting Ross if Taylor, they they're, might be able to do something. No, it will be only be interesting if the pitches are, not rank turners. Only then it will be interesting. Otherwise, it will be the same as India, England, or any other series that India plays at home. और WTC points at stake है, तो इंडिया थोड़ा टर्निंग ट्रैक्स तो बनाएगा ही, क्योंकि उनको चाहिए अभी. वो लोग बदला लेना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम फाइनल जाना चाहेंगे, तो एटलीस्ट होम सीरीज दे वांट टू इंश्योर. तो हो सकता है टर्निंग ट्रैक्स रहे. But New Zealand also know this is their most difficult tour. So even if they lose 1-0 and एक test draw भी कर लें, तो that will be good for them because they don't want to lose too many points. But again, जैसा टेस्ट क्रिकेट है आजकल, हार्डली मैचेस ड्रॉ होते हैं, तो who knows, New Zealand might pull one and then then it will be great because then there will be doubts over Virat's captaincy. I'm predicting 2-0 to India, but let's hope for an interesting series. Yeah. Same. I'm also predicting 2-0. Yeah, New Zealand will not be able to win a test match no matter what they do. And they have this bubble fatigue भी हो गया होगा उनको काफी, क्योंकि इंडिया के काफी फ्रेश प्लेयर्स आ रहे हैं और न्यूजीलैंड का अभी T20 सीरीज भी खेल चुके हैं एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा वो लोग मेंटली भी टायर्ड है, एक्सेप्ट फॉर केम विलियमसन. साउदी विलियमसन तो आईपीएल से ही है वहां पे. Yeah, and Jameson I think the South African tour is also starting in December. Then, like that is not far, all right? Yeah, but India will be playing a Boxing Day test match in South Africa. Still, T20 World Cup is before the World Test Championship, so I think more focus will be on the T20 World Cup now. Obviously, World Test Championship background में चलता रहेगा एक background music की तरह, but अभी तो सोल फोकस आई थिंक T20 वर्ल्ड कप है. एंड ये बुरे मेमोरीज को भुलाने के लिए अभी ये लोग ट्राई करेंगे, स्पेशली न्यू कैप्टन के अंडर में. तो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक
So विराट के बेसिकली 2 ही टेस्ट मैच है, एक न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका बॉक्सिंग डे, तो आई डोंट थिंक विराट का 100 आ रहा है इस साल भी. भाई छोड़. Virat, I don't care about Virat anymore. I'm I more think concerned about Rohit Sharma now. Rohit Sharma and the other test batsman. Yeah. Yeah. I mean, on So we paper, have come a- ये series लग रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, but I'm sure कि both team will compete. साउथ अफ्रीका भी compete करेगी and न्यूजीलैंड will also compete. So Indian cricket has come a long way, guys. There was a time people did not want Rohit in Test, One Day, or T20 teams, but now No, I'm really worried things because have changed. that's why I'm saying कि New Zealand can square this series just because of the Rohit factor. Yeah, 1-1 हो सकता है guys. नहीं होगा. Chill मत. नहीं होगा यार, इंडिया में नहीं होगा यार. यार अश्विन जडेजा को कौन खेलेगा यार? वही भाई वन पहले ही दिन में 150 पे वो लोग ऑल आउट कर रहे होंगे तो देखना. और ये लोग अश्विन जडेजा अक्षर तीनों को खिला लेंगे फिर. अक्षर को भी खिला रहे हैं भाई, अक्षर को खिला रहे हैं. आज वो प्रेजेंटेशन में बोल रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टेस्ट सीरीज, तो पक्का उसको भी खिला ही रहे हैं. तो मतलब समझ ले पूरा टर्निंग ट्रैक होने वाला है. और क्या, इसका 10 से कम है ना टेस्ट में एवरेज वैसे भी अक्षर पटेल का. भाई उसने बोला आज की डेट आई हैव टेकन 27 विकेट्स इन द इंग्लैंड सीरीज इन 3 टेस्ट मैचेस, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर टेस्ट सीरीज. तो डेफिनेटली वो खेल रहे हैं. अगर वो खेल रहे हैं और अश्विन जडेजा भी खेल रहे हैं तो भाई डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग ट्रैक. So I don't think there is much. I don't feel much excited. Obviously New Zealand World Test Championship है, but यार Indian conditions का game different है. I don't think इंडिया को छोड़ के कोई और मैच कर सकता है इंडिया को. इंडिया में मतलब इंडिया ए शायद खेले तो ही वो मैच कर सकते हैं इंडिया को, वरना I don't see any other team matching India in India. हाँ यार, That's it's very simple as very that. difficult. या फिर एक मैच में if it's not a ranked runner, maybe Williamson, Ross Taylor can play like the best innings ever and do something, but that's highly unlikely. Yeah, वही मैं भी सोच. ठीक है guys, so Cool then, guys. we'll wrap this up. And awesome win, especially third T20 was very good batting first. Ishan Kishan also had 2 runouts, by the way, being a keeper. 2 fantastic throws from the deep, and Venkatesh Iyer bowled really well. I mean, I think he genuinely can replace Hardik Pandya. And I hope these matches don't become irrelevant in the context of the 2022 World Cup. So let us see how this is the first building block. So we will track the progress कि अभी से एक साल के अंदर में कैसा progress करता है T20 team. Who are the players tried? Who are the players not tried? So let us see how it pans out at the end. So, okay, guys. So we'll see you again soon. Maybe after the first test match, or even in the middle of the test, if like Pratik says, if it gets interesting. So we'll see you in the middle of the test. Yeah. So, guys, see you. So, bye, guys. Bye.